Hello everyone. Now, today in this video, we will read the next part of fourth poem, class 12, A Thing of Beauty. So, yesterday I taught you the two stranger, A Thing of Beauty, and this two stranger poet said about the thing of beauty and what is a beauty and description of the full of beautiness. So, two stranger poet says, beauty is never fade. He gives always joyness to us. वो हमें joyness देती है. So now let's start the third stranger. Some space of beauty move away the pale from our dark spirit. Such the sun, the moon, tree old and young sprouting, a shady boon for simple shape, and such are daffodils with the green world they live in and clear rails. So, the third stranger poet says, further carries on with the description of the more beauty thing present on earth. तो अब इस स्ट्रेंजा में जो है पोएट जो है क्या बता रहे हैं, ब्यूटीनेस जो हमारे अर्थ में जो ब्यूटी है उसको अच्छे से और नेचर से जोड़ के बता रहे हैं. अभी फर्स्ट टू स्ट्रेंज नाउ द फर्स्ट टू स्ट्रेंजर पोएट सेड एवरी द थिंग ऑफ ब्यूटी इज गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस एंड इट्स नेवर फेड. एंड नाउ दिस स्ट्रेंजर द थर्ड स्ट्रेंजर पोएट गिव द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी. अब जो इस थर्ड स्ट्रेंजर में पोएट जो है ब्यूटी के फुल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. सो पोएट सेज, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon for simple shape, and such are daffodils. So poet says, the things of present on earth, these are sun, moon, trees, flowers, that means daffodils, and the rivers. Poet says that these things are like a blessing. अब पोएट क्या बोल रहे हैं? Now the poet says the sun, moon, air, trees, flowers, old, young sprouting and shady boons for simple sheep, they gives us beauty and always give the joyness. तो अब जो सन है, जो मून है, जो ट्रीज हैं, वो सब हमें क्या करते हैं? खुशी देते हैं. द यंग स्प्राउटिंग आ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एक सिंपल शीप हो. तो शेडी बून दैट मीन्स जो पेड़ों की छाव होती है उसको कहा जाता है. सो अब शिप जो एक सिंपल शिप है उसके लिए भी वो शेडी बून जो है ब्यूटी है, क्योंकि छाव में उसको भी अच्छा लग रहा है. अब चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो, सबको छाव की ज़रूरत पड़ती है. सभी को जो है फ्लावर फ्रेगरेंस, स्वीटनेस, हैप्पीनेस, एवरीवन लाइक्स टू, सारे के सारे लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती है. नाउ सो दिस स्ट्रेंजर द पोएट डिस्क्राइब ऑफ द मोर ब्यूटीनेस थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि हमारे अर्थ में कितनी सारी चीज़ें जो हैं अभी और भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. दैट मीन्स द सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, यानी कि डैफोडिल्स जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स को कहा जाता है उनको. तो उसकी बात हो रही है. विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन द clear reels, that means river. So poet says the sun, moon, trees, flowers and the rivers give us happiness and the joyness. That means they are the true beauty in the earth. तो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ में true beauty हैं, because it's never fade, and when we see them then always give to happiness and the joyness. जब भी हम देखते हैं इन सब चीज़ों को तो बहुत सुंदर दिखता है. when the sun rise and you see then you feel very energetic. जब आप सन को राइज होते हुए देखते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हो. and when at the night when you see the moon in the sky then you feel very good and then you feel very happy. दैट मीन एंड द सेम एज द ट्री एंड द यंग स्प्राउटिंग. जब पेड़ों में से क्या होते हैं, जब छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं तो आप उसको देख के बहुत खुश होते हो. एंड द शेडी बून, जो पेड़ों की छाव होती है वो बहुत अच्छी लगती है. फॉर सिंपल शिप और अ ह्यूमन, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो सिंपल शिप हो.
and such are the daffodils. Daffodils is a very beautiful flower and he grown in the deep forest. जो daffodils होते हैं बहुत सुंदर flower होते हैं जो कि deep forest में grown होते हैं. With the green world they live in clear rills and the rivers also give us joyness. जो rivers होती नदियाँ होती हैं वो भी हमें joyness देती हैं. आपने देखा होगा नदियों के किनारे आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है. So in this stanza, the poet described that the tree providing us with their shade flowers. अब इसमें क्या ट्री जो है हमको छाँव देते हैं, फूल देती हैं, फल देते हैं, तो वो भी क्या है एक तरह की सुंदरता है. And river with their coolness during the hot summer. Now in the river give us coolness in the summer season. जो river है वो हमें क्या करते हैं summer season में coolness देते हैं. So all are these the beauty of nature which are like a boon for us. So poet says the all nature things give us joyness and it the beauties of nature which are like a boon for us. जो कि हम लोगों के हम सबके लिए एक वरदान जैसा साबित होते हैं. Like sun, birds, when you hear the voice of bird, voice of bird, then you feel very happy. And the river's voice, river sound, when you see the river during in the summer season, then you feel very happiness. So poet says that all these things are the beauty of nature which are like a boon for us. वो सारी चीज़ें जो कि नेचर ने हमें दी हुई हैं सबके सब खूबसूरत हैं और हमेशा जॉयनेस देती हैं. दैट इज़ अ ट्रू ब्यूटी. यही क्या है एक सुंदरता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है. इट इज़ द इंक्रीज डे बाय डे. व्हेन यू सी दैट दैट थिंग्स देन यू इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो जब भी आप इन चीज़ों को देखते हो तो वो इंक्रीज होती हैं. ऐसा नहीं है कि आपने आज नदी को देखा है आप कल नदी को देखोगे तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, तो दूसरे दिन वो आपको और अच्छी लगेगी. सेम एज द ट्री शेड, फ्लावर्स, fruits, the sound of birds, rivers, everything. So now the next stanza, that for themselves a cooling covered make giants the hot season, the might forest break spreading of fair musk rose boon, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty death, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So now the last and fourth and last stanza, that for themselves a cooling covered make. Cooling covered that means small बुसेज. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो स्मॉल बुसेज होती है उनकी बात हो रही है. स्मॉल बुसेज. देन द एरिया ऑफ रिवर विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन ऑल द क्लीन रिल्स. नदी के किनारे किनारे आपने देखा होगा फ्लावर्स लगे होते हैं, कुछ छोटे छोटे फूल लगे होते हैं. दैट कॉल कवरेड. सो द poet says on the description of the more beauty thing present on the earth. अब यहाँ पे जो है पोएट जो है पृथ्वी में जो हमारे अर्थ में जो और भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं उनके बारे में बता रहे हैं. So the poet says such as the beauty musk rose which have the nice fragrance. Now the poet says about the musk rose. मस्क रोज दैट मीन्स जो जंगली गुलाब के फूल होते हैं उनकी बात हो रही है. सो दैट फॉर द देम सेल्फ और कूलिंग कवर्ड मेक. अब क्या होता है नदी के किनारे जो छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं वो एनिमल्स एंड द जो ह्यूमन है उनको क्या देते हैं? कूलनेस देते हैं. जॉइंस द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में. द माइट एंड द फॉरेस्ट ब्रेक. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी. द कवरेड एंड दैट मीन्स स्मॉल बुशेज एंड शेड द shady boons, the giants of hot season. गर्मी के मौसम में जो बून है, shady boons हैं, rivers हैं, daffodils flowers, and the cover that means small bushes give us coolness and the joyness during the hot season. So spreading of the far musk rose boon and such to the current of the domes. So poet says the beautiful musk rose which have such a nice fragrance. The poet described the
tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity. तो यहाँ पे जो पोएट है मस्क रोज की बात कर रहे हैं. मस्क रोज यानी कि जो जंगली गुलाब के फूल होते हैं, they looks like very beautiful and their fragrance spread the whole areas. It looks very beautiful and they give us joyness. जो मस्क रोज की जो स्मेल होती है, जो फ्रेगनेंस होती है, वो बहुत अच्छी होती है और जिससे जब भी हम उस एरिया से निकल के जाते हैं तो कितने ही हम थके हारे हों, थके हों या कितने ही सैड हों, तो हमें उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमें क्या करती है, स्प्रेड देती है. दे गिव अस अ जॉयनेस एंड द हैप्पीनेस. नाउ एंड सच टू द garnets of the domes we have imaged for the mighty death. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वैरियर्स की बात हो रही है. सो पोएट सेज द माइटी वैरियर्स हु लेड देयर lives फॉर देयर कंट्री और फॉर ह्यूमनिटी. आप पोएट बोल रहे हैं कि जो वैरियर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो आर्मीज होती है, जब वो अपनी कंट्री के लिए या अपनी ह्यूमनिटी के लिए क्या करती है, अपना बलिदान देती है अपनी कंट्री के लिए, तो वो भी क्या है, ब्यूटी है. वो भी क्या होती है, उनके लिए सुंदरता होती है. यानी कि अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. बिकॉज उसी चीज़ से उनको क्या मिलती है, जॉयनेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है. और डे बाय डे वो उनको इंक्रीज़ करती है कि उन्हें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है. सो नाउ poet describe the tale of the mighty warriors. So now the fourth stanza, the poet says describe the mighty warriors. जो mighty warriors होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं. They lives for their country, जो कि अपने देश के लिए ही जीते हैं, and for the humanity, और जो मानवता के लिए जीते हैं और अच्छा काम करते हैं, उनकी बात कह रही है. So we have imaged for the mighty death all the lovely tales that we have the heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens bring. So poet says, these the beauty things are the gift from God for all us. They are like a nectar gifts by God to us, and these beauties which are immortal and gives us a reason to live on their earth, despite having so many sorrow in our life. So poet says, we have imaged for the mighty death. जब हम उन लोगों की डेथ के बारे में सोचते हैं तो हम इमेज करते हैं कि जब वो when the warrior give their lives फॉर देयर कंट्री, जब उन्होंने अपनी लाइफ कंट्री के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, देन दे फील वेरी गुड एंड दे फील वेरी हैप्पी. एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड एंड दे रीड. और जो भी अच्छी चीज़ें, हम कोई भी अच्छी कहानियाँ जो होती हैं, जो टेल्स होती है, जब हम उनको सुनते हैं और उस कहानी को सुनने के बाद when we hear the lovely tales and we forget our sorrow and our greatness, then दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो वो टेल्स जो है, वो जो कहानी है, वो भी क्या होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक दैट मीन्स नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ें, लाइक फाउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, माउंटेन, द लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, इमोर्टल है. तो दे ऑलवेज गिव अस जॉयनेस एंड द हैप्पीनेस. ना पावरिंग अप टू अस फ्रॉम हैवीनेस ब्रिंग. और जो कि हमें क्या करती है, हेवन यानी कि जो पैराडाइज होता है, जो स्वर्ग होती है, उसकी अनुभूति कराती है. सो द फोर्थ स्ट्रेंजर, द पोएट सेज अबाउट the thing of beauty, about the musk rose which have such a nice fragrance. Then the poet described the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity. And now poet says that the beautiful things are the gifts from God for all of us. Now they are like a nectar gifts by God to us, and these are those beauties which are immortal and gives us a reason to live on this earth despite having so many sorrow in our life. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मस्क रोज हैं, बाकी चीज़ें जो हैं, रिवर्स, माउंटेन, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग इन द अर्थ, so give us a reason to live on the earth.
जो कि हमें इस अर्थ में जीने का क्या देती है, रीज़न देती है। एंड दे आर इमॉर्टल, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इमॉर्टल है। एंड दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो सारी चीज़ें जो इमॉर्टल हैं दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड दे नेवर फेड एंड दे इंक्रीज डे बाय डे, वो कभी फेड नहीं होंगी और क्या करेंगी, डे बाय डे जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। एंड दे गिव अस अ रीज़न टू अर्थ, जिन्होंने हमें धरती पे रहने का एक रीज़न दिया है। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सॉरो इन अवर लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं और जब हम उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें जॉयनेस देती है, हैप्पीनेस देती है, देन वी फॉरगेट अवर ऑल सॉरो, तो हम अपने सारे के सारे दुख को, हमारी सैडनेस को भूल जाते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, इट्स द वेरी लवली पोएम ऑफ दिस बुक द फ्लैमिंगो and most important poem, A Thing of Beauty. So I hope so you understand. Thank you.